Jai Hind everyone. We have Lieutenant Colonel Aditya Budhi Raja sir with us, and sir is ex-army and ex-psychologist trained by DIPR and has a plethora of experience in assessing the candidates in the psychological aspects. And over here at Centurion, he trains all the SSB aspirants in the psych aspects. So sir, welcome. Sir, we'll start with your journey. And like sir, you are an ex-NDA, and NDA is an aspiration for so many. Like I'm an ex-OTA, but NDA was an aspiration for me as well. So sir, I want to know that what motivated you and what was that point in which you decided that you want to pursue a career in the army? First of all, in my family, there was nobody from the armed forces. But the turning point was I got an opportunity to study in the Army Public School, which we call proudly the original Army Public School. Now, there are, I think, 50 plus APS in the country, but I'm from the original one in New Delhi. And it changed my life because every day you're interacting with kids of armed forces, personnel, officers. So obviously आपका रुझान थोड़ा सा बन जाता है, आप बच्चे हो, एक impressionable एज में हो, and NDA was like mandatory देना, सब देते थे, तो हमने भी दे दिया. So and I cleared in the first attempt in 11th. That time the requirement was you should be 11th pass once you join NDA. So later it became 12th pass because of the technology and the educational levels going up. So they made it 12th pass. That once you join NDA, you should be 12th pass. In our time, it was 11th pass. So जो अभी NDA 2 होता है अगस्त सितंबर में, तो 11th के बीच में वो दिया, फिर कुछ महीने बाद SSB आया, मेडिकल आया, मेरिट आई, एंड जुलाई में ज्वाइन कर गए NDA, जबकि 12th स्टार्ट करनी थी. So I didn't even join 12th. Sir, recently you went for course together at NDA. And I can understand the nostalgia. Like sir, my father is ex-NDA and he went again. He had gone for the 63rd course, and so sir, when you went there, what are the primarily changes you have seen? Like there's been so much of generation gap. Technology has come into play. So what did you notice? That what are the primary changes that have taken place from your days in NDA to now? In selection per se, nothing much has changed. But फर्क कहाँ पे आया है? लाइक आई वॉज इन एनडीए कपल ऑफ मंथ्स बैक, हमारे बैच का रियूनियन था, विच इज क्वाइट नॉस्टैल्जिक. यू आर मीटिंग योर कोर्समेट्स एज वी कॉल इट, सम ऑफ देम आफ्टर 30 years, 35 years, you never met them after NDA. एयरफोर्स वाले हो गए, नेवी वाले हो गए. NDA इज अ ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन. सो सिस्टम बेसिकली वही है, IOGTO साइक. फर्क कहाँ है? एक कैंडिडेट्स की अप्रोच में, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड, which I will say mostly it is not good because there is too much of information overload. There are a lot of distractions via the social media, and everything, yeah, you can say that everything is available on a touch and a swipe via the mobile. जो हमारे टाइम नहीं था, we had to persevere. हमें हर चीज करनी पड़ती थी. पढ़ना था तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किताब इशू करानी पड़ती थी. Now today you are on screen. But how it has affected the candidates is in this way, mentally, emotionally. और सर हर चीज जल्दी जल्दी मिल रही है. And in life you don't get everything जल्दी जल्दी. You have to work hard, you have to go through the grind. So that is one of the main reason. अब ट्रेनिंग की बात करें तो obviously ट्रेनिंग is also, NDA तो वही है, अभी हम घूम के आए. बेसिक करिकुलम वही है, जिसमें आपका फिजिकल है, एकेडमिक्स है, पीटी है, ड्रिल है, स्विमिंग है, गेम्स है, क्लब्स हैं, सो मेनी थिंग्स. बट एकेडमिक्स पे काफी वेटेज बढ़ गया है. एक रीजन ये भी है कि एयरफोर्स एंड नेवी आर प्योरली टेक्निकल आर्म्स, तो वही बच्चा जा सकता है जिसके पास 12th में PCM है. सो ये एक मुझे अंतर नजर आया, बट बाकी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. आई मस्ट टेल एवरीबडी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. इट इज द टफेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड इन दैट एज ब्रैकेट. जैसे हमारे टाइम 16 से 19 ऐसी जनरली एज होती थी, आज जो बोलते हैं 17.5 to 19, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज 12th क्लास बढ़ गई है मैंडेटरी. तो उस एज ब्रैकेट में बच्चे हो आप 11वीं 12वीं के, 4 साल ट्रेनिंग है, बिकॉज 3 years यू डू ट्रेनिंग इन द NDA एंड देन यू गो टू योर रिस्पेक्टिव अकेडमीज.
एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी चले जाते हैं 1 साल के लिए, नेवी वाले नेवल एकेडमी, आर्मी वाले IIM में देहरादून. तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट. Sir, like currently we are starting with a ninth foundation. So, sir, ninth kids are very young and they are literally kids. So, sir, what do you think are the psychological aspects in which these kids can start very early training themselves, whether at home or whether training here? So, what are the tips and tricks you will say for the kids, those who are studying in ninth foundation, and how they can prepare themselves at an early stage for the psych assessment? देखो, जो भी NDA एस्पिरेंट है, जैसे सेंचुरियन रन्स फ्रॉम 9th क्लास 9 से 12 तक, जब तक आप रिटर्न नहीं देते और SSB नहीं जाते, द डायनेमिक्स लाई एज ए स्टूडेंट इन योर डेली रूटीन. तो रूटीन आज ही ऐसा करें कि यू गेट अलाइंड फॉर द फोर्सेज एज एन ऑफिसर, जिसको हम टाइम टेबल बोलते हैं. उस टाइम टेबल को ऐसा ट्वीक करें. एग्जाम्पल के लिए, बड़ा छोटा एग्जाम्पल, कि जिंदगी भर पीटी करनी है, पूरी लाइफ 5 बजे उठना है, 6 बजे पीटी होती है. स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इंक्लूड एक्सरसाइज, रनिंग, गेम्स, व्हाटएवर, एटलीस्ट फॉर एन आवर. उसके बाद आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, जो भी करते हो, बिकॉज उस पर भी फोकस होना है. यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एकेडमिक्स. एंड देन इवनिंग में गेम्स खेलना है, एक आधी हॉबी डेवलप कीजिए, एनी हॉबी. अपना दायरा बढ़ाइए एक ओवरऑल राउंडेड पर्सनैलिटी बनने के लिए. दैट्स व्हाट ऑफिसर्स आर. डोंट फॉरगेट, वी आर द रोल मॉडल्स इन द कंट्री. आई ओपनली से, ओनली रोल मॉडल्स इन द कंट्री. द नेशन लुक्स अप टू अस. द आर्म्ड फोर्सेस नेवर लेट द कंट्री डाउन. आवर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, conduct is impeccable. Why? Because of the SSB. The system has been designed like that. Like I told you, the base is psychology. It is not a test of your background or your academics primarily. वो तो रिटर्न में हो गया, करके आ गए आप. सोच का टेस्ट है SSB कि क्या ये कैंडिडेट अकेडमी में लेने लायक है और आगे जाके उसको ट्रेनिंग अकेडमीज ऑफिसर बनाएंगी. So that's a good insight. Sir, last question. Any 5 pro tips you would like to give for all the aspirants, irrespective of entry you are going, whether it is NDA, whether it is through CDS or AFCAT? What are the 5 tips you will say that which can really help an aspirant for its SSB journey? देखो, like I said, routine, have a timetable, avoid social media. This generation should not be on social media. When I say social media, I mean just watching reels and making reels on Instas and Facebooks. कोई पर्पस सर्व नहीं करता. आपको जो नॉलेज चाहिए, टेक्नोलॉजी शुड नॉट कंट्रोल यू. यू शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर योर ग्रोथ. वॉच वीडियोस, नॉलेज के वीडियोस, करंट अफेयर्स के वीडियोस, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस, कोई स्किल अक्वायर करनी है उसके वीडियो, बस वहीं तक सीमित रखिए. उसका भी टाइम डिफाइन कीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, नॉट मोर देन दैट. तो ये टाइम टेबल हो गया, आपका रूटीन हो गया, आपकी हॉबी हो गई. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कम्युनिकेशन स्किल. जिस तरह SSB का आधार साइकोलॉजी है, उसी के पैरेलल चल रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स. IO को बोल रहे हो, साइक को लिख रहे हो प्योरली, GTO को तीनों कर रहे हो, बोल भी रहे हो, लिख भी रहे हो, दिखा भी रहे हो, लीडर भी हो, टास्क भी कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन भी हो रही है. कम्युनिकेशन स्किल में बहुत कमी पाई जाती है. यहां पे सेंचुरियन का फोटे है, क्योंकि जो इनके फाउंडेशन कोर्सेज चलते हैं 9th, 10th, 11th एंड ऑल दोस बैचेस, वो होलिस्टिक व्यू लेके चलते हैं, विच इज द राइट वे. तो सीधा ये नहीं है कि आपको SSB की तैयारी करानी शुरू कर दी. नहीं, आपका एकेडमिक्स चल रहा है, आप गेम्स खेल रहे हैं, आपका डिबेट्स हो रहे हैं, आपके कितने और इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें आप ग्रुप में काम करना सीखते हो. आर्म्ड फोर्सेस इज ऑल अबाउट ग्रुप वर्क. इट इज नेवर इंडिविजुअल. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग विच सेंचुरियन डज. सही उम्र में पकड़ लेते हैं ताकि बच्चा अलाइन होना शुरू हो जाए. इट इज समथिंग लाइक, जैसे कोई कैंडिडेट्स होते हैं सैनिक स्कूल, RMC, मिलिट्री स्कूल्स, जैसे वो 6th, 7th, 8th क्लास से अलाइन हो जाते हैं उस स्कूल में जाके, बिल्कुल, बिकॉज दे आर फीडर स्कूल्स फॉर NDA. तो सेंचुरियन उसी मॉडल पे काम कर रहा है. इट्स अ वंडरफुल थिंग.
that overall personality without compromising on anything. In fact, they are giving much more, जो कि एक आम रूटीन में बच्चा सिविल में नहीं कर पाता है. We all know how our society is. पढ़ाई पढ़ाई, कितने नंबर आए, पेरेंट्स का भी सारा फोकस उसी पे रहता है. So here बैलेंस करके चलते हैं, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को निखारते हैं, कम्युनिकेशन स्किल होता है, गेम्स होती हैं, पढ़ाई होती है, और धीरे धीरे करके बड़े साइंटिफिक तरीके से उसको एसएसबी की तरफ अलाइन करते हैं. पहले रिटर्न की तरफ, पहला बैरियर इज रिटन, एंड वंस दे क्लियर रिटन देन एसएसबी, एंड एवरीथिंग इज इन हाउस. सो आई ऑलवेज से सेंचुरियन मस्ट बी द ओनली वन स्टॉप शॉप इन द कंट्री, कि आप 9वीं 10वीं से आइए और सीधा एसएसबी सिलेक्ट करके एकेडमी जाइए. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, so with this, I sign off here and hope to see Colonel Aditya Bhuti-Raja sir next time with something new. And I, Lieutenant Kavish Gandhar here, sign off. Jai Hind. Thank you. क्या आपका भी बच्चा 8th में है और आप भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाह रहे हैं जहां उसकी स्कूलिंग के साथ में नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन हैंड टू हैंड चले, जहां ना सिर्फ वो स्कूल की पढ़ाई करे बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी डिफेंस मेंटोरशिप के साथ में ऐसी रेडी हो कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम को क्वालिफाई कर दिखाए. तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू. सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने लॉन्च किया है नेशनल डिफेंस एकेडमी 9 फाउंडेशन रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्पेशली फॉर 8th पास स्टूडेंट्स. ये बैच आपके बच्चे को क्लास 9 से गाइडेंस देगा क्लास 12 तक. ना सिर्फ आपके बच्चे का फाउंडेशन मजबूत होगा बल्कि वह एक डिफेंस एनवायरनमेंट के अंदर रेडी होगा, जहां डिसिप्लिन होगा, रूटीन होगी, जहां रेगुलर स्कूलिंग के साथ साथ एकेडमिक क्लासेस के साथ डिफेंस पर्सपेक्टिव से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश पर एम्फेसिस होगा. वर्क कराते हुए स्टूडेंट्स के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ में एक ही टारगेट होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी इन फर्स्ट अटेम्प्ट. आर यू रेडी? The inquiries are on. Admissions are open for the Lucknow Center. Jai Hind.